اور اس احسانوں میں سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اتنا خوبصورت مذہب یعنی اسلام ہمیں عطا کیا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ میری محترم معزز بہنوں، آج اس دنیا میں جہاں ہر طرف گمراہی کا دور ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، ہر طرف سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، لیکن دیکھیے میری محترم معزز بہنوں، آپ دنیا میں جا گئے کہ دیکھیے کتنے لوگ اس وقت سیریل دیکھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ اس وقت گانے سن رہے ہوں گے، کتنے لوگ اس وقت گالی دے رہے ہوں گے، اور نہ جانے کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے تمام گناہوں سے بچا کر یہاں دین کی مجلس میں لا کر جمع فرما دیا۔ میری محترم معزز بہنوں، ایسی دین کی مجلسوں میں سب نہیں جڑتے، اللہ تعالیٰ ایسی دین کی مجلسوں میں ان کو ہی جمع فرماتے ہیں جن کو وہ عمل کی توفیق دینا چاہتے ہیں۔ میری محترم معزز بہنوں، اس مجلس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ہم لوگ اس مجلس میں آ کر جڑتے ہیں تو فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب ہم ایسی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور جب وہ تعریف ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے عرش پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک دین کی مجلس سے آ رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ہم ایک دین کی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرے بندے بیٹھ کر تیری تعریف کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تعریف کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کیا تعریف کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو سب کو معاف فرما دیا۔ میری محترم معزز بہنوں دیکھیے یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے جی میری محترم معزز بہنوں دیکھیے یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی دین کی مجلسوں میں جڑنے والوں کو موتیوں کے منبر پر بیٹھا کر چہروں کو نور سے چمکائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ایسی دین کی مجلسوں میں جڑنے کی اور جمع ہونے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے ویسے ہی عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں دوبم کلاس کی اسما کو قرات کے لیے کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی قرات کو پیش کریں اس شاعر کے ساتھ کہ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، جو دین سے دور ہے وہ پریشان بہت ہے، اور ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، مومن کی ہدایت کو قرآن بہت ہے۔ اسمائیں اور اپنی قرات کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अस्मा ने हम सब के सामने अपनी किरात को पेश किया। अल्लाह ताला हम सबको भी कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अव्वल क्लास की सुंदुस को बयान के लिए इस शायर के साथ कि सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की, बंजर दिलों को आपने सहराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सहराब कर दिया, एक चश्मे कायनात है सीरत रसूल की। सुंदुस आए और अपने बयान को हम सबके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मोहतरम माए और अजीज बहनें जुड़ जुड़ कर बैठ जाएं, दरमियान में जरा भी जगह न छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम अयूब से पाक है। वो ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ना ही तो वो हमेशा से है और ना ही हम हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला का हम सब पर बेइंतहा और बेहिसाब एहसानात है। इन एहसानों में सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया, इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। मैं आप सबके सामने एक किस्सा बयान करना चाहती हूँ, जो गौर व तवज्जो से सुने। एक महाजिर और एक अंसारी सहाबी की चौकीदारी। एक रात एक शब-ए-औज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की चौकीदारी कौन करेगा। तो एक महाजिर और एक अंसारी साहबी ने फरमाया कि हम करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक पहाड़ की चोटी पे एक ऐसी खास जगह बताई जहाँ से दुश्मनों के आने का अंदेशा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। तो हज़रत अंसारी साहबी ने फरमाया कि रात के दो वक्त होंगे, एक में आप आराम करना, मैं जागूंगा, एक में मैं आराम करूंगा और आप जागना। इससे हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है वो भी उनका वो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा और चौकीदारी भी हो जाएगी। तो हुजूर वो एक मुहाजिर साहबी वो सो गए। फिर अंसारी साहबी ने नियत बांधी और नियत बांधकर सूरह कहफ शुरू कर दी। तो एक पहाड़ी की चोटी से एक दुश्मन ने तीर मारा, पहला तीर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से 3 तीर मारे और उनकी नमाज में वो आराम से हाथ से तीर निकाल कर फेंकते रहे और अपनी नमाज पढ़ते रहे। अगर हम होते उस जगह तो हम तो नियत तोड़कर वही उन्हें अंसारी साहबी को उठा देते, लेकिन उन्होंने तीर पर तीर खाते गए और नमाज में कोई भी हरकत नहीं करी। फिर उन्होंने रुकू किया इत्मीनान से, फिर सजदा किया, फिर नमाज पूरी करके अंसारी साहबी को उठाया। तो दुश्मन तो ये देखकर भाग गया कि एक है की जगह दो है, न जाने कितने और हो। लेकिन अंसारी साहबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, तुमने मुझे पहले ही क्यों न जगा लिया। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने एक सूरह कहफ शुरू कर दी, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उसे पूरी होने से पहले सलाम करूं। अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी अगर ये न होती तो मैं कभी भी सलाम न फेरता, चाहे मैं मर ही क्यों न जाता। सुभान अल्लाह, क्या नमाज की वो है
कि नमाज में तीर पे तीर खाते जाए फिर भी नियत नहीं तोड़ते। अगर हमारे एक मच्छर भी काट ले तो हमारे नमाज में से ध्यान जाता रहता है और दिन का तो कोई पूछना ही क्या। अल्लाह ताला से रो होकर नमाज की रूह को मांगा जाए और नमाज में ध्यान पैदा करने के लिए 3 चीज तस्बीह की पाबंदी करी जाए। उठते बैठते चलते फिरते कलमे की खूब दावत दी जाए और तालीम के हल्कों में बैठकर गौर व अज़मत से सुना जाए। जो कुछ सुना है उससे ज्यादा अमल की नियत करें। अब से जब अमल करने वाले बनेंगे ना, सब कहें इंशाअल्लाह। और सब पंजगार नमाजी बनेंगे ना, सब कहें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको और अच्छे से पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना नमाजी बनाए। अब मैं आवाज देती हूँ नाजरा क्लास की ऐना को नात के लिए कि वो आए और हम सबके सामने अपनी नात को पेश करें इस शायर के साथ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, और जैसे थे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई। तुम सा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई। ये शाने तलाफत है साया नहीं कोई, ऐ ज़र्ब नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। ऐना आए और अपनी नात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं मगर, हमने आँखों से देखा नहीं मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने वाकई कलामे इलाही दिया, जिसने वाकई कलामे इलाही दिया। वो मोहम्मदी मदीने में मौजूद है, फूल के पर किसे अला, फूल के पर किसे अला, झूम करके सदा ऐसी खुशबू चमन के गुलाबी कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलाबी कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं मगर, हमने आँखों से देखा नहीं मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहती ऐसे, हमने माना कि जन्नत बहती ऐसे, छोड़ कर मदीना न जाए कहीं। ये तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, ये तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं मगर, हमने आँखों से देखा नहीं मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ दो तेरा तौबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तौबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं
तस्वीर सीने मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में ऐना ने हम सबके सामने अपनी नात को पेश किया। अल्लाह ताला इनको और अच्छे से पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने रसूल की तारीफ बयान करने वाला बनाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ फिर से नात के लिए मुब्तदी क्लास की रुकैया को कि वो आए और हम सबके सामने अपनी नात को पेश करें इस शायर के साथ कि हम दिल के नगीने रुकैया खान को इस शायर के साथ कि हम दिल के नगीने से उन्हें देख रहे हैं, हम दिल के नगीने से उन्हें देख रहे हैं, आशिक है करीने से उन्हें देख रहे हैं और अपना ये अकीदा है जिन्हें इश्क है मुस्तफ़ा से, अपना ये अकीदा है जिन्हें इश्क है मुस्तफ़ा से, सरकार मदीने से उन्हें देख रहे हैं। रुकैया खान आए और अपनी नात को हम सबके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस पाक ज़ात के लिए सदावार है जो तमाम अयूब से पाक है। वो ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ना तो हम हमेशा से हैं और ना ही हम हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला का हम पर भी इंतहा और बेहिसाब एहसानात है। इन एहसानों में सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया, उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। मैं आप सभी के सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ, जरा तवज्जो और मोहब्बत के साथ सुने। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना मुझे ले, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है। दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में। मैं सोचती हूँ दिल में, मैं सोचती हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, शबे रोज बढ़ रहा है मेरी तशनगी का आलम, शबे रोज बढ़ रहा है मेरी तशनगी का आलम। ये प्यास कब बुझेगी, ये प्यास कब बुझेगी, साखी मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, नहीं मालूम ज़र तो क्या हो, नहीं मालूम ज़र तो क्या हो, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मुझे गर्दिशों न छेड़ो,
रुकैया नात की, रुकैया नात की, बस एक इल्तिजा है, रहे जिंदगी सलामत, रहे जिंदगी सलामत, मैं भी देख लूं मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में रुकैया खान ने हम सबके सामने अपनी नात को पेश किया। अल्लाह ताला इनको और अच्छे से पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अव्वल क्लास की आयशा अंसारी को बयान के लिए कि वो आए और हम सबके सामने अपने बयान को पेश करें कि इस शायर के साथ कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, ईमान का माफूम तेरे दर का अदब है। सब अच्छे से जोड़ करके बैठ जाएं। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अल्फिजा को, अव्वल क्लास की अल्फिजा को बयान के लिए कि वो आए और हम सब के सामने अपने बयान को पेश करें कि इस शायर के साथ कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, ईमान का माफूम तेरे दर का अदब है, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो आका तेरी जुल्फों का लक़ब है। अल्फिजा आए और वो हम सब के सामने अपने बयान को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मेरा मौजू है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फख्र है और आज 1300 वर्ष तक काफिरों को दिल में खौफ है, इस्लाम लाने से पहले और मुसलमानों को तकलीफ देने में भी मुतमईन थे। एक बार कुफ़ार ने कमेटी कायम की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कत्ल करेगा। नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कत्ल करेगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं करूँगा। कि लोगों ने कहा कि बेशक आप ही कर सकते हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लटकाए हुए इस फिक्र में चल दिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे। वो कहने लगे कि ऐ साद कहाँ जा रहे हो। कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पर हूँ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। तो कहने लगे कि बनो हाशिम, बनो ज़हरा, बनो अब्दुल मुनाफ, ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। ये तुम क्या कर रही हो, वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बददीन हो गया है, कि मालूम होता है तू भी बददीन हो गया है, कि मुसलमान हो गया है। ला पहले तुझको ही निपटा दूं, कि ला पहले तुझको ही निपटा दूं। उसके बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। और उन्होंने भी अपनी तलवार सोच ली। इतने में दोनों तरफ से तलवार चलियों को दी। इतने में उधर से साद रज़ियल्लाहु अन्हु आकर कहने लगे क्या उमर, पहले तो अपने घर की तो खबर ले, तेरा बहन और तेरी बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था कि अपनी बहन की तरफ चल दिए। वहाँ पर हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। ये दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़वा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो उनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से अंदर छुप गए और वो सफ़ा वहीं पर रह गया। और उनकी बहन हमशरा ने किवाड़ खोले और जब उन्होंने किवाड़ खोले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कोई चीज़ थी जो अपनी बहन के सर पर इस जोर से मारी कि उनका खून बहने लगा। कहने लगा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई है, यानी मुसलमान हो गई है। उसके बाद अंदर आए और कहने लगे कि क्या कर रहे थे, ये कैसी आवाज़ थी। तो कहने वो उनके बहनों
लफ्ज सुनने थे और अपनी बहनों की दाढ़ी पकड़कर खींची और उन पर बेतमाशा टूट पड़े और जमीन पर लिटाकर कितना मारा कि खून बहने लगा। उसके बाद बहन ने छुड़वाने की कोशिश करी तो अपनी बहन के मुंह पे जोर से तमाचा मारा कि उसके मुंह से खून बहने लगा। तो वो कहने लगी कि उमर, हमें इसलिए मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए हैं। हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो वो तू कर ले। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ इस मारपीट में, और जब अपनी बहन को देखा कि इस तरह खून में है तो उन्हें शर्म आई और वो जो सफा बाहर रह गया था उस पर निगाह पड़ी। कहने लगे कि ये क्या है, इसे मुझे दिखाओ। तो उनकी बहन ने कहा कि नहीं, पहले तू नापाक है, इसको नापाक हाथ नहीं छू सकते, जाके गुस्ल कर और बावजूद जब मैं इसको हाथ लगाने दूंगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर चंद्र इसरार किया, यानी बहुत कहा अपनी बहन से कि इसे मुझे दिखा दे, मगर वो भी उमर की ही बहन थी, उन्होंने नहीं दिखाया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल किया और वजू किया। उसके बाद उस सफ़े को लिया और पढ़ना शुरू किया जिस पर सूरत तोहा लिखी हुई थी। वहां तक पढ़ना ही था कि हालत बदल गई, पूरी हालत बदल गई और कहने लगे कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो, कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। तो ये अल्फाज सुनने थे कि अंदर से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आए और कहने लगे कि उमर, मैं तुम्हें खुशखबरी ना दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की रात को दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, अबू जहल और उमर में जो तुझे ज्यादा पसंद हो उसे दीन के लिए कबूल फरमा। मुझे मालूम होता है कि ये दुआ तुम्हारे हक में कबूल हुई है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और जुम्मे की सुबह को मुसलमान हुए। उनका मुसलमान होना था कि काफिर के हौसले पस्त पड़ गए, काफिर के हौसले जो थे वो पस्त पड़ गए। उनका मुसलमान होना था, काफिरों को हौसले पस्त पड़ गए। ये है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी, ये है उनका ईमान, जज्बा। आज हमारी जिंदगी क्या हो चुकी है, हमारा ईमान कहाँ गया, हम कैसे हो गए? जरा अपने आप को तो देखिए मेरी बहनों, जरा हम अपने आप को देखिए कि हम कैसे हो चुके हैं। अरे पहले के घर कच्चे हुआ करते थे मगर उनके ईमान मजबूत पक्के होते थे, और आज के घर पक्के हैं, तेल पत्थरों के हैं। तो हमारे ईमान कितने कमजोर हैं, जरा गौर तो करिए कि हम कैसे ईमान में कितने कमजोर हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं। ये वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी नमाजें कबूल नहीं होती, हमारा अल्लाह नहीं सुनता। मेरी बहनों, अपने ईमान को पक्का कीजिए, अपने ईमान को मजबूत बनाइए, फिर देखिए जो चाहे वो मिलेगा, जो मांगिए वो अता होगा। अरे मांगिए तो सही, आप तो दुनिया के आगे मांगती है। अरे दुनिया नहीं देगी, एक बार देगी, दो बार देगी, तीसरी बार पता है क्या कहेगी, अगर इसका तो यही पेशा हो गया है, अरे इसका तो यही पेशा है, जब देखो आने आती है और मांगती है। अरे मगर मेरा अल्लाह किसी से नहीं कहेगा, तो अरे उससे मांगिए तो सही, मगर कहाँ? आज तो हम अपने जिस्मों की नुमाइश करते हैं, अपने बालों की नुमाइश करते हैं, ऐसे होटलों में जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे नबी ने कह दिया कि पर्दा फर्ज है, तो क्यों हम इस पर्दे को भुलाए बैठे हैं, क्यों भुलाए बैठे हैं इस पर्दे को? अरे मेरी बहनों, पर्दा करिए, अपने पर्दे को पहचानिए, यही तो हमारी हया है, कुव्वत है। मगर नहीं, आज तो हम इसकी नुमाइश कर रही हैं, डीजे पर डांस कर रही है मेरी बहनें। अरे ढोल तासे ये सब बजा के डांस हो रहा है और पैसे दे रही हैं। मेरी बहनों, अपने ईमान को पहचानिए। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के ईमान में पुख्तगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सिर्फ अपने आप से मांगने वाला बनाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मुक्तदी क्लास की तरन्नुम को नात के लिए, इस शायर के साथ के हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, जामे कौसर पिलाएंगे मदीने वाले। ये सारी दुनिया भी मुझे रोक ना पाएगी, ये सारी दुनिया भी मुझे रोक ना पाएगी, जब मदीने बुलाएंगे मदीने वाले। तरन्नुम आए और अपनी नात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मोहतरमा और अजीज बहनों, मेरी मोहतरमा और अजीज बहनों, अल्लाह ताला का हम सब पर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान
आपा नमता का नहीं है। बयान की वजह से नाम नहीं पढ़ा। जी जल्दी जी आपा। बस थोड़ा सब अच्छे से आइए मेरे जल्दी से सब आधा घंटा लगे बात को बैठ सब अच्छे से जुड़ जाए आगे को। मैं आप सभी के सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ, जरा अजमत और मोहब्बत के साथ सुने। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। हो तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले, जाकर बड़े अदब से, तैबा के जाने वाले, जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा-ए गम कहना शाहे अरब से, मेरा भी किस्सा-ए गम कहना शाहे अरब से, कहना के शाहे आलम, कहना के शाहे आलम, कहना के शाहे आलम, एक रंजो गम का मारा, दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा, हालांकि आलम से इस दम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है, फरियाद कर रहा है। पाए गुनाह अपना है दोष पर उठाए, कोई नहीं है ऐसा जो पूछने को आए, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को ढूंढता है, तारीकियों में मांगे कामिल को ढूंढता है, सीने में है अंधेरा दिल है सियाह हमारा, ये दिल मेरी कहानी सरकार को सुनाना, कहना मेरे नबी से मैं रोऊं खुशी से, चल बड़े कब्रे गम है अश्कों से आँख लम है, पामाले जिंदगी हो सरकार उम्मती हो, उम्मत के नैनुमा हो, कुछ अर्ज़ हाल सुन लो, फरियादी कर रही हूँ मैं दिल फिदार कब से, फरियाद कर रही हूँ मैं दिल फिदार कब से, मेरा भी किस्सा-ए गम कहना शाहे अरब से, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, के दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, नहीं मालो जर तो क्या है मैं गरीब हूँ ये ही ना, नहीं मालो जर तो क्या है मैं गरीब ही हूँ ये ही ना, मेरे इश्क
मुझको ले चल, मेरे इश्क़ मुझको ले चल, तू जानवे मदीना, मेरे इश्क़ मुझको ले चल, तू जानवे मदीना। आका ना टूट जाए ये दिल का अब जीना, अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना, अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना, अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना। दिल रो रहा है जिनका आंसू छलक रहे हैं, दिल रो रहा है जिनका आंसू छलक रहे हैं, उन्हें आशिकों का सदका बुलवाइए मदीना, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। आज़िम मदीना जाकर नबी से कहना, सोज़े हमें अलम से अब जल रहा है सीना, कहना कि बढ़ नहीं है अब दिल की इस्तिरादी, कदमों से दूर हूँ मैं किस्मत की है खराबी, कहना कि दिल में मेरे अरमा भरे हुए हैं, कहना कि हसरतों के लश्कर छुपे हुए हैं, है आरज़ू ये दिल की मैं भी मदीने जाऊं, सुल्ताने दो जहां को नाते जिगर दिखाऊं, काटूं हजार चक्कर तैबा की हर गली के, यूं ही गुजार दूं मैं अय्याम जिंदगी के। फूलों पे जानी सारो, कांटों पे दिल को हारो, घरों को दो सलामी, घर की करो गुलामी, दीवारों दर को चूमो चौखट पे सर को रख दूं, दीवारों दर को चूमो चौखट पे सर को रख दूं। रोजे को देख कर मैं रोती रहूं बराबर, आलम के दिल में है ये हसरत ना जाने कब से, हम सबके दिल में है ये हसरत ना जाने कब से, मेरा भी किस्सा-ए गम कहना शाहे अरब से। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। एक रोज हो गजाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें लब पर नबी की नाते, दिल में नबी की यादें लब पर नबी की नाते, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। या मुस्तफा गुजारा ये इस्तेहाज़री का, कर लो नजारा या कर मैं आपकी गली का। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, इस बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, आका हमें दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। नसीब वालों ने मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों ने मेरा भी नाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में
शाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, बुला लो ना, बुला लो ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब अंदाज में इन्होंने अपनी नात को पेश किया। अल्लाह ताला इनको और अच्छे से पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ की हाजिरी बार बार नसीब फरमाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ बयान के लिए अव्वल क्लास की शाहीनूर को, कि वो आए और अपने बयान को हम सबके सामने पेश करें कि इस शायर के साथ, जब चांद से बढ़कर है तलवा रसूल का, जब चांद से बढ़कर है तलवा रसूल का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा रसूल का। सोचो कि वो खुल्दे बरी में पहुंच गया, सोचो कि वो खुल्दे बरी में पहुंच गया, देखा है जिसने आँख से रोजा रसूल का। आप इनके बाद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मोहतरम बहनें मिल कर बैठ जाएं और दरमियान में जरा सी भी जगह ना छोड़ें और नियत करें कि अल्लाहुम्मा वक़िफ़ना लिजुलूस बिल अज़मा व लिनस्मा बिनाया व लिनाफ़अ व लिनहफ़ज़ व लिनअमल बिल इख़लास व लिनुबल्लिगु इला रुख़रा। अल्लाहुम्मा उद इला वक़्तिन हज़ना फिल इतिकाफ़। या अल्लाह हम सबको अज़मत के साथ बैठने की, गौर व फिक्र के साथ सुनने की, समझने की और इख़लास के साथ अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे उठने तक के वक्त को एतिकाफ में शुमार फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम ऐबों से पाक है, वो ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। देखिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहनें, ना ही तो हम हमेशा से हो और ना ही हम हमेशा तक रहेंगे। अल्लाह ताला का हम सब पर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरी बंदी, ए मेरे बंदे, तुम मुझसे तौबा करने वाली बन और तुम मुझसे तौबा करेगी तो मैं तेरा आगे बढ़कर इस्तकबाल करूँगा, मैं तेरा आगे बढ़कर इस्तकबाल करूँगा। अगर मैं किसी से नाराज हूँ और वो मुझे मनाने आए कि मैं उसका इस्तकबाल करूँगी, बल्कि उससे मुँह मोड़ कर बैठ जाऊँगी। मगर मेरा और आपका रब कहता है कि तुम मुझको मनाने आएगी तो मैं तेरा आगे बढ़कर इस्तकबाल करूँगा। बनी इसराइल में एक शख्स ने 99 कत्ल किए। उसे तौबा का ख्याल आया तो वो एक इबादत गुजार बंदे के पास गया और उससे कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, कि मेरी तौबा हो सकती है। उस शख्स ने कहा कि हरगिज नहीं, तू तो बड़ा जालिम है, तेरी तौबा तो हो ही नहीं सकती। तो उसको गुस्सा आया, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसे तौबा का ख्याल आया तो वो एक आलिम के पास गया और उससे कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, कि मेरी तौबा हो सकती है। उसने कहा कि हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मेरे रब की एक मिसाल है कि मेरा रब कहता है कि ए मेरी बंदी, ए मेरे बंदे, तू इतने गुनाह करके जमीन से ते पे ते लगाकर आसमान भर दे और जब तू सच्चे दिल से एक बार मुझसे कहेगा कि या अल्लाह मेरी तौबा, तो मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो उसने कहा कि बशर्त है तौबा का पक्का होना। ये शहर जरा गंदा है और तू दूसरी बस्ती में चला जा, नेक लोगों की बस्ती में चला जा, तौबा पक्की हो जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ और वो बस्ती को छोड़कर चला गया। कि रास्ते में पहुंचा तो एक मौत के फरिश्ते ने उसको झटकी दी कि वहीं पर वो मर गया। कि जन्नत के अपनी बस्ती के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। तो अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम दोनों के फरिश्तों की छुट्टी कर दी। जन्नत का भी आ गया और जहन्नम का भी आ गया। जन्नती कहने लगा कि हमारा मेहमान है, सहरे पहनाओ। जहन्नमी कहने लगा कि हमारा मुजरिम है, हथकड़ी पहनाओ। तो जन्नती कहने लगा कि नियत कि अपना घर, अपनी बस्ती, अपना घर छोड़ दिया था। तो जहन्नमी कहने लगा कि नेक लोगों की बस्ती में अभी पहुंचा नहीं था। तो इतने में अल्लाह ताला ने तीसरे फरिश्तों को भेज दिया, कहा कि पैमाइश की जाए। तो अल्लाह ताला ने नेक लोगों की बस्ती की सड़क को हुक्म दिया कि ए जमीन
तो सुकड़ जाओ। वो सुकड़ गई और उसकी बस्ती की सड़क को हुक्म दिया कि ए बस्ती तू फैल जा, और वो फैल गई। तो जब पैमाइश की गई तो नेक लोगों की बस्ती के करीब और अपनी बस्ती से दूर निकला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ले जाओ, हमारा मेहमान है, जन्नत में ले जाओ इसको। मेरी मोहतरमा अजीज़ा ने देखिए, वो तो बनी इसराइल का आदमी था, हम तो फिर भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्या हमारी तौबा नहीं हो सकती? अरे हम जब उसके दर पे जाएंगे और उससे तौबा करेंगे तभी तो होएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मग़फ़िरत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें खूब अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मुब्तदी क्लास की अनमता को कि शायर के साथ वो आए और अपनी नात को हम सबके सामने पेश करें कि शायर के साथ रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का ये इसरार है कि खातिमुल अंबिया कहिए, शरीयत का ये इसरार है कि खातिमुल अंबिया कहिए, और मोहब्बत का तकाजा है महबूबे खुदा कहिए। अनंता आए और अपनी नात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मोहतरमा अजीज बहनों, अपने बालों को अच्छी तरह से ढाक लें और नियतों को बना करके बैठे कि आज हम अल्लाह ताला के मासूम फरिश्तों की मजलिस में बैठे हैं, जन्नत को वाजिब और जहन्नम को हराम करने के लिए। मैं आप सबके सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ, जरा तवज्जो से सुनें। आप लोगों इनके बाद ही काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरतों से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को, और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस खोलती है अज़ाने, कानों में रस खोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी मकबूल होंगी, मंजूर होंगी
قبول ہوں گی. مسافر احمد میرے سر پر, مسافر احمد میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دیا نام مقدر, تا عمر کر دیا نام مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنی عطا سے بلوائیے نا, اپنی عطا سے بلوائیے نا, مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا, مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا. میں ایک گناہگار بندی ہوں تیری, میں ایک گناہگار بندی ہوں تیری. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی کیا چاہتا ہے, بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. مولا سبھی کیا چاہتا ہے, بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش پہ طالب پہ آنا کرم کر, بخشش پہ آنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبۃ اللہ کا دیدار کرائے. اب میں آواز دیتی ہوں اپنی استانیہ کو کہ شاعر کے ساتھ کہ ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اور استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا, کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا. میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے بتایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے. واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. میری استادیاں آئیں اور
اپنے بیان کو ہم سب کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی سامعات اچھے سے جڑ جڑ کر کے بیٹھ جائیں, ادھر کو آ جائیں, سب ذرا جلدی جلدی سے اچھے سے جڑ جڑ کر کے بیٹھ جائیں. پیچھے جو آنے والی مائیں بہنیں ہیں ان کو جگہ مل جائے. سبھی سامعات خیال کریں, اندر سے آواز آ رہی ہے, آپ جہاں پر بھی ہیں ذرا باادب ہو کر کے ادب کے ساتھ میں بیٹھیں. نیت و ارادہ کریں, انشاءاللہ جتنی باتیں سنیں گے اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے, ارادہ کرنا کام ہمارا ہے اور قبول کرنا کام اللہ کا ہے. اگر ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے اوپر فیصلے عطا فرماتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی, کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی. ہم تمام کو سورج دکھائے, سورج دیکھو کتنی اپنے سمے پر نکلتا ہے اور اپنے ہی سمے پر چھپ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر بارہا کیسی کیسی قدرتیں ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑے بہت نظارے باہر کے کیا کریں. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بیٹھ کر ایک لمحہ غور کرے گا, ایک لمحہ بولے تو خالی اتنا سوچے اللہ تیری قدرت کتنی زبردست ہے کہ تو نے کیسی کیسی چیزیں بنائی, ہوا سے, تو نے مٹی سے, اور کیسے کیسے تو نے پانی سے, اللہ تعالیٰ نے پانی کی چیزیں بنائی, ہوا کی چیزیں بنائی, اللہ تعالیٰ نے تمام سامعات مٹی کی چیزیں بنائی, اللہ تعالیٰ نے آگ کی چیزیں بنائی. تو یہ اللہ کی کتنی زبردست قدرت ہے. ذرا سا بندہ بیٹھ کر غور کرے کہ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں بنائی, تیرا کتنا شکر ہے. صرف تھوڑی سی دیر کا ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سوچنا. اذان ہو رہی ہے, سبھی مائیں بہنیں اذان کا جواب لے لیں.
सामियात, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों पर गौर किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सारी नेमतें हमें अता की और अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा की। कितनी? 18,000 मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की। उनमें सबसे ज्यादा अफजल जो मखलूक है वो अशरफुल मखलूकात है। और वो मखलूक क्या है? हम इंसान हैं। वो मखलूक क्या है? हम इंसान हैं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इतना बड़ा एहसान कि ईमान वाला बनाया, और इतना बड़ा एहसान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। इस नबी की उम्मत में आने के लिए बड़े बड़े नबियों ने दुआ की, बड़े बड़े अकाबिरों ने दुआ की। तमाम सामियात, हमने तो मांगा भी नहीं, हमने तो चाहा भी नहीं, हमने तो कोशिश भी नहीं की, हमने तो रोया भी नहीं, उसके बावजूद भी मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको ऐसे नबी की उम्मत में से हमें बनाया है कि जिसकी जबानों पर हदीस पाक में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद इसके रावी हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जो है मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद मनक़ौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ऐसा आला बनाया है कि ये उम्मत ऐसे कलमे के साथ मानूस हुई है, ऐसे कलमे से मुतासिर है जो पहले की उम्मतों को वो कलमा बड़ा भारी पड़ा। लेकिन इस उम्मत के इतने गुनाह होंगे, उस कलमे की बरकत से अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो कलमा क्या है? कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमाम सामियात, हम कसरत से अल्लाह ताला की कुदरतों पर गौर किया करें, कलमा पढ़ा करें, चलते फिरते उठते बैठते जिक्र और अज़कार किया करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र करने वाला दिल जिंदा है और जिक्र न करने वाला दिल जिंदा भी मुर्दा है। जिक्र करने वाला दिल क्या है? बोलिए क्या है? जिंदा है। और जिक्र न करने वाला दिल जिंदा भी मुर्दा है, क्योंकि जब वो जिक्र नहीं कर रहा तो वो जिंदा भी मुर्दा है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करते थे। एक मर्तबा क्या हुआ, वो पढ़ा करके सो गए तो आपस में चिड़िया जिक्र कर रही थी कि बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया। अब देखा गया तो उनका इंतकाल नहीं हुआ था, वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए थे। अब मैं और आप जरा गौर करें कि हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना अल्लाह को याद करते हैं, यहाँ की वहाँ की दुनिया की कितनी बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र हमारी जबान से क्या है? निकल जाता है। अल्लाह का जिक्र हमारी जबान से याद ही नहीं रहता कि जिक्र करना है, लेकिन दुनिया की बातें बहुत खूब हमें याद रहती है। तमाम सामियात, हम जो मजलिस में जुड़ते हैं बार और बार हमें यह ताकीद कहा जाता है और ताकीद इस बात को ताकीद की जाती है कि कसरत से अल्लाह को याद किया करें। सबसे पहला जुज अपनी जिंदगी में अपनाए। मजलिस में जब भी आ रही है कम से कम एक पॉइंट तो अपने साथ लेकर जाएं और इस एक पॉइंट को पकड़ करके अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ईमान। ईमान मजबूत करिए कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, सब संभालने वाली जात अल्लाह की है। अपने ईमान को अगर हमने मजबूत कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। सहाबियों का ईमान हुआ करता था। एक अल्लाह के रास्ते में एक जमात की कारगुजारी सुनी कि पता चला एक खातून 40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने लगी। उनका बच्चा 6 महीने का बच्चा, कितने महीने का बच्चा? 6 महीने के बच्चा अब अल्लाह के रास्ते में निकल गई। जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है 70,000 फरिश्ते उसके इर्द गिर्द, उसके घर की, उसके बाल की, उसके बच्चों की, सबकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो तमाम सामियात, क्या हुआ? वो बहन अल्लाह के रास्ते में निकलने लगी। उन्होंने अपनी बहन से कहा आप बच्चे को ले जाना। बहन ने माँ को कह दिया कि आप बच्चे को ले जाना, और माँ ने भाभी को कह दिया कि आप बच्चे को ले आना। अब ऐसा ही हुआ, वो वक्त में फोन वगैरह नहीं चलते थे। अब अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सब घर से बाहर आ गए। माँ ने सोचा
माँ ने सोचा मेरी बहू के पास है बच्चा, और बहू ने सोचा मेरी नंद के पास है, नंद ने सोचा उसकी बहन के पास है। अब इस तरह से वो लोग निकल गए घर से, और वो जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाली थी वो अल्लाह के रास्ते में निकल गई, या मसलन वो जमात में गई, या फिर ये कहो कि वो हज पर गई, लेकिन गोया कि वो अल्लाह के रास्ते में निकली। अब हुआ क्या कि वो जो 6 महीने का बच्चा है वो घर के अंदर रह गया और पालने में झूले में झूलता हुआ रह गया। अब माँ सोच रही है मेरी बहू के पास है, बहू सोच रही है कि जी हमारी नंद के पास है, नंद सोच रही है वो जो भाभी की जो बहन है उनके पास है। अब यही कारगुजारी चलती रही, इस तरह 40 दिन पूरे हो गए। अब जब लौट करके आए तो पता चला, घर का दरवाजा खोला तो बच्चे को निहायत खुश अखलाक बाअंदाज और बहुत अच्छा शरीफ अंदाज में पाया कि वो झूले में लेट कर खेल रहा है और मुस्कुरा रहा है, और ना कोई लैट्रिन में मुब्तला है ना कोई पेशाब में मुब्तला है, और मुस्कुरा रहा है। जब उसको देखा गया कि अभी तो मेहमान भी नहीं है, अब इतनी दूर दूर के मेहमान है, सारे मेहमान भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये बच्चा यहाँ कैसे, तो पता चला कि वो 40 दिन से ही उस घर में था। तो देखिए उसकी हिफाजत किसने की, अल्लाह ने की, अल्लाह के फरिश्तों ने की। तो तमाम सामियात, हमें भी अल्लाह के लिए अपने ईमान को ऐसे मजबूत करना है कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की। हम तमाम को अपने ईमान को इतना बचाना और इतना बढ़ाना है कि मेरी और आपकी मौत ईमान पर हो। लेकिन आज हमारे ईमान कमजोर हो गए हैं। अब जरा ठंडा पानी पिएंगे तो कहेंगे कि जी हमने ठंडा पानी पी लिया था इसलिए गला खराब हो गया। अब जरा केले खाएंगे तो कहेंगे कि जी हमने केला खा लिया था इसलिए हमारा गला खराब हो गया, इसलिए हमें खांसी हो गई, इसलिए हमें नज़ला हो गया। मेरी बहनों, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह सब के बगैर सब कुछ करने पर कादिर। अपने ईमान को, यकीन को पुख्ता कीजिए, मजबूत कीजिए कि अल्लाह का गैर कुछ नहीं कर सकता और अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। तो सबसे पहले इतना यकीन और इतना ईमान बनाइए कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, सबको देखने वाली जात अल्लाह की है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तमाम सामियात, मजलिस को खत्म होने का वक्त हो गया है, तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि सोए ना मजलिस से बैठ करके। कहाँ नींद आ रही है मजलिस से बैठने वालों को? अच्छी गहरी नींद सो रही है गुलशन बाजी? तो तमाम सामियात अपने ईमान को मजबूत करें, और साथों साथ मजलिस में आ रही है एक न एक अमल को पकड़ कर लेकर जाएं, अल्लाह से रो रो कर अपने काम को बनवाएं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाले बने। नमाज एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह ताला से मिला देता है और इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर देता है। देखिए तमाम शरीयत के अहकाम जमीन पर आए, कुरान भी जमीन पर आया, हज भी जमीन पर आया, मेरी बहनों रोजा जमीन पर आया, सारे शरीयत के अहकाम जमीन पर आए, लेकिन एक नमाज जैसा वाहिद तोहफा अल्लाह ताला ने अपने नबी को अर्श मुअल्ला पर बुलाया, मेराज पर बुलाया, उसके बाद नमाज का हुक्म फरमाया। नमाज कोई मामूली चीज है? जब अल्लाह ताला ने नमाज को बनाने का इरादा किया तो नमाज ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं जमीन पर तने तना नहीं जाऊंगी, मैं तो तेरा नंबर हूँ, कोई खास चीज को भी ऐसे ही भेज देता है? नहीं भेजता। ऐ अल्लाह, मैं तेरा नंबर हूँ, तुझसे बात करने का जरिया हूँ, तुझसे मिलने का जरिया हूँ, तेरे करीब आने का जरिया हूँ, मैं तने तना नहीं जाऊंगी। तो अपने नबी को मेराज पर बुला और फिर उसके बाद मेराज की सैर करा और उसके बाद मेरे जैसा तोहफा उसको अता करूँ। तो तमाम सामियात, हमें 50 टाइम की नमाज अल्लाह ताला ने अता की थी, और जब कोई तोहफा दिया जाता है तो इसको कोई भी इनकार नहीं करता। मेरे नबी तो बड़े खुश थे, मेरे नबी तो बड़े अच्छे से कि अल्लाह से मांगने का जरिया मिल गया, अल्लाह से बातें करने का जरिया मिल गया, खुशी खुशी आ रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ नबी अल्लाह, बड़े खुश नजर आते हो, क्या बात है, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने 50 टाइम की नमाजों का तोहफा अता किया। सुभान अल्लाह। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी उम्मत में 2 टाइम की नमाज
نماز نہیں پڑھی آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز کیسے پڑھ لے گی؟ آپ جائیے کم کرا کر آئیے. تو تمام سامعات وقت کم ہے, آپ مختصر سے وقت میں سنیں کہ گئے 5 ٹائم کی نمازیں کم ہوئی, پھر گئے 5 ٹائم کی نمازیں کم ہوئی. غرض یہ کہ 50 ٹائم سے 5 ٹائم کی نماز رہی. اور اس کے اوپر بھی حدیث قدسی میں میرے اللہ نے فرما دیا, اے محمد جو شخص 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرے گا, ہم پیچھے کہتے نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ تو نقطہ نماز ہے. وہ نقطہ نماز کیسے ہے کہ 5 ٹائم کی نماز تم پڑھو گے جب ہی نقطہ لگے گا. اب تم نماز نہ پڑھو پھر تم کہو کہ اللہ تو نقطہ نماز ہے یا نہیں؟ بتائیے, ہم نماز نہ پڑھیں اور پھر کہیں اللہ تو نقطہ نماز ہے, پھر کہاں سے اللہ نقطہ نماز ہو جائے گا؟ پہلے تو 5 ہمیں ہی نماز ادا کرنی پڑیں گی, پھر اللہ نقطہ لگا کر 50 کر دے گا. جو شخص 5 ٹائم کی نماز کو ان کے وقت پر ادا کرے گا, انہیں اچھے سے پڑھے گا, تو میرا اللہ کا وعدہ ہے اسے 50 ٹائم کی نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آپ سے سب ارادہ کریں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میری تمام سامعات, یہ تو نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. اللہ سے مانگیے, اللہ کے آگے گڑ گڑائیے. نماز تو وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول کرتا. بس یہ ہے کہ کوئی دعا ہاتھ اثر دکھاتی ہے, کوئی دعا میں دیر ہوتی ہے, اور کچھ دعا کو میری بہنوں اللہ تعالیٰ سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ اس کا اجر آپ کو عطا کر سکے. تو آپ سے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو پکا وعدہ کریں کہ آئندہ پوچھو سب سے 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی؟ پڑھنے والی بنیں گے انشاءاللہ. 5 ٹائم کی نہیں بلکہ کوشش کرنی ہے 6 ٹائم کی بھی. صبح کو جو فجر بعد پڑھی ہوئی سو رہی ہوتی ہے نا, تو فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھے. سورج نکلنے کے بعد اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی ہزار اونٹنی اور ان کے اوپر وہ 70 اونٹنی, شاید یہ 70,000 کچھ ایسا ہی حدیث کے اندر لکھا ہے, فضائل اعمال کی حدیث ہے کہ حاملہ اونٹنی اور ان کے اوپر اس قدر کا مال لدا ہوا, اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا. اور اشراق کی نماز میں روزی ہوتی ہے. میری بہنوں, جب ہم صبح پڑھے گئے فجر میں سو رہے ہوتے ہیں نا, تو فرشتہ آتا ہے روزی لانے والا, اور وہ دیکھتا ہے کہ سو رہے ہیں تو وہ روزی بکھیر کر چلا جاتا ہے. کیا کرتے جاتا ہے؟ روزی بکھیر کر چلا جاتا ہے. جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا کمانے والا اور ہم کھانے والے پورے دن بکھری ہوئی روزی کو سمیٹتے. 20 روپے یہاں سے کماتے, 30 روپے وہاں سے کماتے, 50 روپے وہاں سے کماتے, 100 روپے وہاں سے کماتے, 200 روپے وہاں سے کماتے. اور جو شخص فجر میں اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھ کر پھر بعد میں سوتا ہے, گویا کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے. اور جب فرشتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جاگ رہا ہے روزی پہنچانے کے لیے, تو سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ جاتے ہیں کہ تیرے مقدر کی روزی آج کی. پھر کیا ہوتا ہے, اگر وہ رکشہ چلانے والا ہے تو اسے ہاتھوں ہاتھ ایسا کام مل جائے گا, پورے دن کی روزی اسی میں آ جائے, اور وہ الگ سے کرے وہ الگ سے تحفہ ہے. اور اگر وہ اور بزنس مین ہے اور بڑا ہے تو بس پورے دن کی روزی اس کو بھاگنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. تو تمام سامعات خیال کریں کہ ہم نے فجر میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا بنا. جب دیکھیے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا, وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے. شاعر بڑے خوب انداز میں کہتا ہے, ساعتین رکعتین دمعین کبھی ناکام نہیں ہوئے. اب یہ لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. ساعتن بولے تو گھڑی, ساعتین 2 گھڑی یعنی رات کے 2 بجے. رکعتن بولے تو رکعت, رکعتین بولے تو 2 رکعت, رکعتین بولے تو 2 رکعت. اب دمعن بولے تو آنسو, دمن بولے تو آنسو, دمعین بولے تو 2 آنسو. ساعتین رکعتین دمعین, 2 رات کے 2 بجے ہی ہو, رات کی 2 رکعتیں ہو اور 2 آنسو ہو, پھر جو بھی مانگو نہ ملے تو کیا. تہجد کی دعا, رات کی دعا, اندھیری کی دعا کبھی رد نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ سے مانگنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پنجگاہ نمازی بنائے. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے, مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
रफीक अल्लाह, मोहसिन अल्लाह, अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह हम बड़े सियाकार हैं, अल्लाह हम बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह जैसे भी आखिर तेरे बंदे हैं, अल्लाह तू हम सब के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह तू हम सब से राजी हो जा, अल्लाह तू हम सबको अपना बना ले, अल्लाह तू अगर हम सब से नाराज हो गया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह तू हम सब से राजी हो जा, अल्लाह हम सबको अपना बना ले, अल्लाह जो हाजिरीन है उन्हें भी अपनी बारगाह में कबूल कर ले, जो गायबीन है उन्हें भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल कर ले, अल्लाह उम्मत में बड़े दुख हैं, उम्मत में बड़े परेशान हाल हैं, उम्मत में बड़े बीमार हैं, अल्लाह उम्मत के दुखियों के दुखों को दूर फरमा, उम्मत की परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह उम्मत के बीमारों को जो डॉक्टर के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, दवाई के मरीज हैं, ऐ प्यारे अल्लाह उम्मत के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला सेहत कामिला अता फरमा, अल्लाह जो जिस बीमारी में मुब्तला है अल्लाह उस बीमारी को से दूर फरमा, अल्लाह उसे शिफा और सेहत अता फरमा, अल्लाह हर घर में परेशानी है, हर घर में कोई न कोई मसला है, अल्लाह तमाम मसाइल को हल फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह आने वाली बलाओं को टाल दे, अल्लाह मुसीबत को टाल दे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात कुल कायनात के बहन भाई मौला दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह खास कर जितने हम सब इस मजलिस में बैठे हैं, हमारे अहले खानदान से, हमारे घर से, हमारे रिश्तेदार पड़ोसियों में से जितने लोग दुनिया से जा चुके, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम की करवट करवट राहत सुकून अता फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा, ऐ प्यारे अल्लाह वो तो जा चुके हमें तैयारी करने वाला बना दे, अल्लाह हमारे अखलाकों को अच्छा फरमा, हमारी सीरत को आला फरमा, हमारी सूरत को आला फरमा, अल्लाह कलमे वाली जिंदगी कलमे वाली मौत अता फरमा, अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा, अल्लाह हम सबको अच्छी जिंदगी अच्छी मौत अता फरमा, अल्लाह जलकर कटकर एक्सीडेंट पोस्टमास्टम जैसी मौत से हिफाजत फरमा, अल्लाह अच्छी जिंदगी अच्छी मौत अता फरमा, ऐ प्यारे अल्लाह उम्मत में जितने बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिहीन परवरदार औलाद अता फरमा, अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान अल्लाह उन्हें परवरदार बना दे, ऐ प्यारे अल्लाह नाफरमानों को परवरदार बना दे, ऐ अल्लाह जो मासूम मासूम हस्तियां उम्मत के तमाम वबालों में पड़ चुके अल्लाह उनको निकाल दे, अल्लाह उम्मत के बच्चों की रहनुमाई फरमा, अल्लाह मुबश्शिर को मुबल्लिग दीन बना दे, अल्लाह मुबश्शिर को मुखलिस दीन बना दे, ऐ प्यारे अल्लाह तेरा मासूम बच्चा तेरे महबूब का दीवाना बना ले, अल्लाह तू उस बच्चे को खूब खूब दीन का दाई मुजाहिद बना, अल्लाह दुनिया की वबालों से फितनों से दज्जाल से उस मासूम को महफूज फरमा, अल्लाह उसके साथ तमाम बच्चों की रहनुमाई फरमा, अल्लाह हमारी नस्लों को दिल से आबाद फरमा, हमारे माँ बापों की हमें आंखों की ठंडक बना दे, अल्लाह तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, हम तुझसे नहीं कहेंगे तो किस कहेंगे, अल्लाह हम सब की औलादों को दीन का दाई मुजाहिद बना दे, अल्लाह हम तमाम को अच्छी जिंदगी अच्छी मौत अता फरमा, अल्लाह हम तमाम को हाजी बना दे, हम तमाम को हाजी बना दे, अल्लाह तेरे दर का दीदार नसीब फरमा दे, तेरे घर की हाजिरी अता फरमा दे, ऐ प्यारे अल्लाह ऐ करीम अल्लाह ऐ रहीम अल्लाह गाजा फलस्तीन और पंजाब वालों की मदद फरमा, अल्लाह उम्मत में जितने भी परेशान हाल हैं सबकी गैबी मदद और नुसरत अता फरमा, अल्लाह कर्जदारों की कर्ज बरी होने की
کی شکل میں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کا قرضہ بری کرا دے. اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلالی پاکی دائمی روزی عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو تیرے نبی کی ایک ایک سنت زندہ کرنے والا بنا دے, سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ با حیا بنا دے, با کردار بنا دے. اے اللہ بڑوں کا ادب اور عزت احترام کرنے والا بنا دے. اے اللہ گمراہیوں سے بچا لے. اے اللہ میرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس دعا میں ہمارا حصہ عطا فرما. جن شر و بلا سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے کریموں کے کریم بے نکاحی لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے سے بڑے سے رشتے جوڑے عنایت فرما. اے اللہ بے نکاحی لڑکوں اور لڑکیوں کو اچھے سے رشتے جوڑے عنایت فرما. اے اللہ شادی کو نکاح کو حلال کو اللہ آسانی عطا فرما. اے اللہ نکاح میں بھرپور آسانی عطا فرما. اے کریموں کے کریم میرے نبی نے جتنی دعائیں تڑپ تڑپ کر مانگی اس دعا میں ہمارا حصہ عطا فرما. جن شر و بلا سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس دعا کو تو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. اے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. اے اللہ میں نے تو میری اوقات کے مشابہت مانگا, تو اپنی شان و شان عطا فرما. اے اللہ میری مائیں بہنیں بڑی دور دور سے آئی ہیں, دلوں میں جائز حاجتیں لی ہیں. اے اللہ ان کے دلوں کی فریاد میں نہیں جانتی. اے اللہ تو تمام کے دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, تمام کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ وسلم.